Welcome to this webinar today, brought to you by the CSR initiative of Jagsonpal Pharma, My Sakhi. To learn more about the initiative My Sakhi, please scan the QR code on the screen and reach the website mysakhi.in. Today we have with us experts in dialogue on menopause and digestive issues. Menopause expert Dr. Ragini Agrawal and gastroenterologist expert Dr. Pawan Rawat. They are here to discuss about the gastric issues in menopausal women. Today's session is courtesy MEMUP, the latest in menopausal hormone therapy by Nari Division of Jagsonpal. We welcome and thank all those who have joined us today as participants. This web series, Menopause Dialogues, is a part of Jagsonpal's ongoing CSR initiatives to raise awareness and promote better management of women's health. It is common to find women struggling with digestive issues, gas, or other gastro problems during menopause. Don't let these digestive problems become a part of your life. It's time to prioritize your health. Let us learn from the experts. And as a New Year gesture, we will be sending to all the participants of this webinar today an Amazon bestseller book on perimenopause and beyond, Finding Your Balance. So to do share your phone number and address in the chat box here or on WhatsApp number 98102699907. This will help us to deliver your copy to your address by the end of this month. Wishing everyone a very happy new year. We have with us gastro specialist Dr. Pawan Rawal. He is the unit head at Gastro Center of Excellence for Digestive and Liver Diseases at Artemis Hospital in Gurugram. He is an alumnus from PGIMS Rohtak and PGIMER Chandigarh. Dr. Rawal specializes in preventing, diagnosing, and treating digestive tract and liver disorders. Menopause expert Dr. Ragini Agrawal, the incoming Secretary General of Indian Menopause Society. She's passionately involved in spreading public awareness on women's health. She is Director AA Derma Science Complete Clinic for Women's Health in Gurugram, an expert in aesthetic, functional, and urogyne surgeon. She specializes in female sexual health. Over to you, Dr. Ragini, to begin this session. Ma'am. Hello everyone. Happy New Year to all of you. So it is our first session in this year, but we are connected with each other for so many months. हालांकि हमें फिर से ये बताने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि आप में से बहुत कई बार जुड़ चुके हैं, कुछ नए लोग हैं, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम मेनोपॉज की बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज बहुत क्लियर है, मेनोपॉज एक शाश्वत सत्य है, इटर्नल ट्रुथ है लाइफ का, जो कि हर लेडीज के लाइफ में आना ही आना है। और जो दूसरी बात सबसे जरूरी है कि आज की जिंदगी में जब हमारी लॉन्गिविटी यानी हमारे जीने के ईयर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो बढ़ते हुए ईयर मेनोपॉज के बाद जोड़ रहे हैं, उसके पहले नहीं, वो तो पहले भी थे। आज हम 40 के बाद 80 तक जी रहे हैं, तो वो 40 साल जो कि पेरीमेनोपॉज से शुरू होकर के मेनोपॉज और बियॉन्ड तक जाता है, वहां आपके हार्मोन्स का एक स्पेशल रोल होता है। आपकी जो बॉडी है वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से बनी हुई है, और जब वो चले जाते हैं तो आपके पास दो ही चारा है, या तो आप एक असहाय इंसान की तरह इस बैटलफील्ड में गिर जाएं, या फिर आप अपने लिए एक नया सहारा ढूंढें जो कि आप खुद हैं। अपने लिए, खुद के लिए और अपनी जिंदगी को जीने के लिए कुछ अपने अंदर आपको पैदा करना पड़ेगा, और उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है अवेयरनेस, एजुकेशन एंड हाउ टू फाइट इट एंड व्हाई इट इज हैपनिंग। इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है और एक स्वस्थ और इंडिपेंडेंट जीवन आखिरी सांस तक जीना है। तो आज जैसे कि हमने बारी बारी एक एक चीज के बारे में डिस्कशन किया,
आज हमारे साथ हमारे मित्र हमारे ही शहर से आर्टेमिस के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के चीफ डॉक्टर पवन रावल हैं, जो कि आपको एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से परिचित कराएंगे, जो कि हम डे टू डे लेवल पे देखते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं कि आखिर क्यों। तो इन गैस्ट्रिक इश्यूज को समझने के लिए हम किन किन चीजों पे बात करने जा रहे हैं। अरे, इसको देखते ही साथ, तो इस स्लाइड को देखते साथ मेरे ख्याल से हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो नजर आ रही है। और यही नहीं, ये प्रॉब्लम सिर्फ इस समय नहीं, हमेशा ही होती रहती है, लेकिन कुछ इस समय में ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारा ईस्ट्रोजन का हार्मोन है ना, वो हमारे पूरे गट में घूमता है, वहां भी उसके रिसेप्टर्स होते हैं। अब ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी में इस पूरे गट सिस्टम में, जो कि लीवर के साथ आपके गैस्ट्रिक ट्रैक्ट, जिसमें कि जिसको आप खाने की नली कहते हो, पाचन की नली कहते हो, उससे लेके वहां तक के जितने रस हैं उससे रेगुलेट होते हैं। मीनोपॉज के लिए हमें शायद अगर ये क्वेश्चन होता तो मैं आप लोगों से पूछ सकती थी कि मीनोपॉज कब होता है, कैसे होता है, वो तो आप लोगों को अब बहुत अच्छी तरह से मालूम है। और ये जो हार्मोनल शिफ्ट हो रहा है, हार्मोन्स की कमी हो रही है, उसके कारण एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, जिसके ऊपर हम आज आके एक्सपर्ट से इनपुट्स लेंगे, इन 4 मेन चीजों के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो डॉक्टर पवन, आपका स्वागत है आज के सेमिनार में। आपसे मैं ये सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि ये एसिडिटी या हार्ट बर्न या GERD, जिसको आप लोग अपने डायग्नोसिस में लिखते हो और आम आदमी को समझ में नहीं आता है, वो है क्या? थैंक यू मैम। धन्यवाद। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव आपने शुरुआत की, जिससे आपने बोला कि ये एक बड़ा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है मेनोपॉज। आना ही है, एटर्नल ट्रुथ है, हर वुमन की लाइफ में एक बार आना है। तो रादर देन इससे परेशान हो, हम एक एक्सेप्टेंस मोड में आए इसके लिए कि हाँ ये है, एंड इससे फाइट करें, क्योंकि इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम थिंग्स कैन बी मैनेज्ड वेरी वेल। तो इससे कमिंग टू द पॉइंट व्हाट यू आस्क्ड कि ये एसिडिटी क्या है, हार्टबर्न क्या है, GERD क्या है। तो मैम, जैसा आपने बताया, जैसे मेनोपॉज का सेटिंग होता है फ्रॉम एज ऑफ 45 टू 55 इन वुमन, तो हॉर्मोन्स का विड्रॉल है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड होती है, आपके हॉर्मोन्स विड्रॉ हो रहे हैं, तो वो हॉर्मोन ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो गट की हेल्थ को, एसिड सिक्रीशन को, लिवर की हेल्थ को, गट के हॉर्मोन्स को कंट्रोल करते थे, उनका विड्रॉल हुआ। तो बॉडी अपने एक नए सेटअप में आती है। पहले वो किसी और सेटअप में थी, अब एक नए सेटअप में है। तो बड़ा निर्धारित है कि वो चेंजेस आएंगे, एसिड सिक्रीशन भी चेंज होगा, बाकी सब चीजें भी आती हैं। नाउ, केवल गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट पे हार्मोन का असर नहीं है, उनका इफेक्ट पूरी बॉडी पे था। उनका इफेक्ट आपके मेंटल मेकअप पे भी था। तो बहुत सारे सिम्टम और भी आते हैं। तो केवल ऐसा नहीं कि हार्मोन विड्रॉ हुए उससे सिम्टम आए, जो बॉडी के अंदर एक पेरीमेनोपॉजल स्ट्रेस आई है, वो भी इटसेल्फ एक कारण है इन सभी सिम्टम्स का। तो एसिडिटी डिफाइन कैसे होती है? क्योंकि स्टमक में नॉर्मली एसिड का प्रोडक्शन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हर इंसान के पेट में बनता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। किसी भी वजह से, आई मीन मेनोपॉज एक फैक्टर है, किसी भी वजह से अगर एसिड सिक्रीशन बढ़ जाए या वो फूड पाइप में आने लगे ऊपर, सो नॉर्मली क्या है, देयर इज अ मैकेनिज्म। फूड पाइप और स्टमक के बीच में वैल्व है जो कंट्रोल करती है, एसिड को ऊपर नहीं आने देती, खाने को नीचे जाने देती है। तो मेनोपॉज में या किसी भी वजह से एसिड का सिक्रीशन बढ़े या वो फूड पाइप में ऊपर आए, तो उसको रीफ्लक्स बोलते हैं। इंग्लिश का वर्ड है रीफ्लक्स, माने वापिस आना। और GERD का क्या मतलब है? गैस्ट्रो इसोफेजियल। गैस्ट्रो माने स्टमक, इसोफेगस माने फूड पाइप। तो अगर स्टमक से फूड पाइप में एसिड ऊपर आए और सिम्टम दे, तो उसको बोलेंगे GERD। ये बिल्कुल सिंपल भाषा में इसका एक अर्थ है। सिम्टम दो प्रकार के होंगे। एक तो जो आपने बोला एसिडिटी, एसिडिटी को यूजुअली इंग्लिश में, लैंग्वेज में या लिटरल मीनिंग में जलन, हर्ट बर्न, यहाँ पे जलना या खाने का ऊपर आना, इसको बोलते हैं। लेकिन ये यहाँ तक सीमित नहीं है। कई बार जो एसिड ऊपर आता है वो केवल गैस्ट्रो सिम्टम नहीं देता, मैंने हार्टबर्न तो देगा ही देगा, बट चूंकि यहाँ पे लंग पाइप भी है, तो चोकिंग सेंसेशन, खांसी का आना, एस्थमा का एग्रीवेट होना और ये अन्य प्रकार के कई सारे सिम्टम ये दे सकता है। तो इसको हम ए टिपिकल सिम्टम बोलते हैं रिफ्लक्स के, और यूजुअल टिपिकल सिम्टम तो है। सो इसको हम GRD लेबल करते हैं मैम। तो बहुत ही अच्छे और सरल शब्दों में डॉक्टर साहब ने आपको बताया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका स्टमक है, वो उसके अंदर गैस एसिड बढ़ा हुआ है,
उसके ऊपर से आपकी ऐसे पतली सी पाइप जा रही है जिसको हम इसोफेगस कहते हैं या नली कहते हैं। यहाँ पर एसिड का काम नहीं है। तो कहीं भी अगर हम एसिड डाल देंगे जहां पर एसिड उसको जला सकता है तो कोरोजन होता है, यानी निशान से पड़ते हैं। तो यही होता है जब आपके गले में अगर बार बार नीचे से एसिड ऊपर आ रहा है, क्योंकि उसके रास्ते को बंद करने वाला रास्ता जो था वो ढीला हो चुका है, तो वो नीचे से ऊपर आ रहा होता है। तो ये एसिडिटी करता है आपको। और ये इस समय ही नहीं, आप ये समझिए जब भी ये प्रॉब्लम आपको हो रही है, यंग एज में भी कई बार होती है, प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है, तो उस समय भी ये एसिडिटी का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये अगर लगातार एसिडिटी होती रहती है तो इसके और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज जो है, एक बड़ा कॉमन सा होता है कि खाना खा लिया जी, गैस सी बन रही है, डकार आ रही है, पेट फूला फूला लग रहा है। तो ये जो सारे प्रॉब्लम है, इनसे भी हमें झेलना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल मैम। सरल शब्दों में अगर बात करें तो हमें अपने पाचन की प्रक्रिया को समझना है। हमने खाना खाया, फूड पाइप से स्टमक में गया, जिसको हम पेट बोलते हैं। वहां पे उसकी चर्निंग होती है, उसको तोड़ा जाता है ताकि वो आंतों को तंग ना करे और वो बड़े ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में छोटी आंत में जाए। उसके बाद अराउंड 10 to 15 फीट, माने 10 से 15 फीट की आपकी स्मॉल इंटेस्टीन है जहाँ पे उसका पाचन होगा। अच्छे पदार्थ आपके खून में जाएंगे, बाकी बचा हुआ जो रफेज है वो बड़ी आंत में जाके स्टूल फॉर्मेशन होगा। ये एक नॉर्मल पाचन की प्रक्रिया है। नाउ इस डाइजेस्टिव प्रोसेस में आप देखिए सब कुछ ऑटोमेटिक है। हम खाना खाते हैं या हम डिफिकेट करते हैं स्टूल को, बाकी इज एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय सो मेनी थिंग्स। गट के हॉर्मोन्स हैं, ब्रेन है, सर्कुलेशन है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जिससे ये कंट्रोल में है। अब हमने देखा कि फिजियोलॉजिकली मेनोपॉज के टाइम पे आपके गट के हार्मोन अप डाउन होंगे, वो कम होंगे, तो मोटिलिटी जो है आंत की, जो यहाँ से नीचे तक का जो डाइजेस्टिव प्रोसेस था जो ऑटोमेटिकली था, उसके कंट्रोल में फर्क आता है। तो जैसे ही गट की मोटिलिटी, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी माने उसकी मूवमेंट मुंह से नीचे तक कम होगी, तो स्टेसिस आएगा, रुकेगा। और हमेशा हम देखते आए हैं जब भी कोई चीज रुकती है, प्रवाह किसी भी चीज का रुकता है, चाहे हवा है चाहे पानी है, कुछ भी, तो उसमें इन्फेक्शन आने का डर बहुत रहता है। तो अब नॉर्मली ही स्मॉल इंटेस्टीन में या छोटी आंत में बैक्टीरिया बहुत है, वो बड़े हेल्दी रूप से हमारे आंत में रहते हैं, हमें मदद करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं, और एक बड़ा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उनसे बना है। लेकिन जैसे ही इंटेस्टाइन की मोटिलिटी माने मूवमेंट कम होगी हार्मोन के विड्रॉ से, तो बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ेगी। एक बात। अब ऐसे में उन बैक्टीरिया को कोई ऐसा मील मिला जो फर्मेंट हो सकता है, जिससे गैस बन सकती है, तो वो गैस की मात्रा को बढ़ा देंगे। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें गट में बैक्टीरिया बढ़े इंटेस्टाइन की मोटिलिटी की कमी से, जो कि मेनोपॉज है, उसमें एक ऐसा खाना गया जो फर्मेंट हो सकता है, तो उस फर्मेंटेशन से गैस बनती है, एक मीथेन एक हाइड्रोजन। तो इसको हम इंग्लिश में गैस फॉर्मेशन या ब्लोटिंग बोलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी फिर वही है, हार्मोन का विड्रॉल, गट मोटिलिटी का कम होना और गैस का बनना, क्योंकि फर्मेंटेशन का प्रोसेस बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ा। तो इसको बड़ा ही कॉमनली आई मीन बोला जाता है कि पेट फूल जाता है, टाइट हो जाता है, पहले मैं 2 चपाती खा लेती थी, अब मैं एक में ही मेरा पेट फूल जाता है, डकार आने लगते हैं, ये सब सिम्टम इस वजह से है। फिजियोलॉजी हमने भी डिस्कस करी, इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्दर। अच्छा, अगला आता है जो अगेन एक बहुत ज्यादा कॉमन चीज है कि कॉन्स्टिपेशन, या जिसको कब्ज कहते हैं, या साफ पेट साफ नहीं होता है, उसके कारण भी भारी भारी लगता है। मुझे तो लगता है आप ये भी कहोगे कि एस्ट्रोजन के कारण नहीं है। हाँ, मैंने आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए कॉन्स्टिपेशन तो वैसे भी इतना कॉमन है जनरल पॉपुलेशन में डाटा वाइज, बट क्या होता है कि दो चेंजेस हैं। एक तो हम अब तक 45 या 48 के हो चुके होते हैं। ईस्ट्रोजन एक ट्रिगर का काम करता है, ट्रिगर का ओके। काम करता है। फिर बात वही है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है कि या तो मेरा पेट साफ नहीं होता, या मेरे स्टूल हार्ड है, या मैं जाती हूँ बट मेरा पेट, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आती कि आई हैव क्लियर्ड इट वेल, यस। इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। तो अल्टीमेटली फिर वही गट की मोटिलिटी, तो जैसे हमने छोटी आंत में बताया जब बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो ब्लोटिंग होती है, इसी प्रकार से बड़ी आंत का काम है स्टूल को बनाना और उसको डिफिकेट कराना और निकालना। तो जब बड़ी आंत की मोटिलिटी कम होगी तो वो स्टूल वहां ज्यादा वक्त रुकेगा, तो वो हार्ड हो जाता है और उसकी इवैक्यूएशन में प्रॉब्लम आती है। सो कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी कॉमन सिम्टम इन वॉज, यस, ट्रिगर्ड बाई द विड्रॉल ऑफ द हॉर्मोन्स, बट देन वील डिस्कस कि उसको कवर कैसे करना। मुझे ऐसा लगता है मेडिसिन में दो तरह के फैक्टर्स हैं, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल फैक्टर को बदल सकते हैं हम, नॉन मॉडिफाइबल को नहीं बदल सकते।
तो menopause is cannot be changed, the things would happen, but I think later on we'll discuss क्या करके इन तकलीफों से हम निजात पाएंगे और कैसे हम इनसे इसको टैकल करेंगे. The reason जो is चौथा फैक्टर इसमें था वो था इंडाइजेशन. जी तो मैम. इंडाइजेशन में अगेन ले दे के मामला वही है कि फुलनेस लग रही है, ब्लोटिंग हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है. यानी पहले तो खा नहीं पा रहे, खा रहे हैं तो पच नहीं रहा, पच रहा है तो फिर वो गैस बन रही है और अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन. तो मतलब ईस्ट्रोजन गया तो आपकी बॉडी का काम हो गया. यही बात हुई. हाँ, मैंने इस पार्ट से लेके नीचे तक इंटेस्टाइन के किसी भी हिस्से में इन्वॉल्वमेंट की वजह से डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स आए. ऊपर गर्ड हो गया, मैंने रिफ्लक्स हो गया, बीच में आपकी ब्लोटिंग हो गई, इंडाइजेशन हो गई, और नीचे बड़ी आंत तक आते आते कॉन्स्टिपेशन हो गया. मैनिफेस्टेशन एक ही चीज का डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे है. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपके हार्मोन्स है ना, ये सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के लिए या आपका जो मेंसेस है वो मंथली ब्लड लाने के लिए नहीं है. ऊपर से नीचे चाहे आप दिमाग को देखो, चाहे आप अपने मूड को देखो, चाहे आप अपने टेम्परेचर रेगुलेशन को देखो, या आज हम बात कर रहे हैं आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की. आपके ये जो दो हार्मोन है ना, जिनको ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, वो आपको नचा के रखते हैं. तो डॉक्टर साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में इसमें बोलते बोलते आ रहा है. तो फिर जेंट्स को तो कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है ही नहीं, या फिर हमेशा से ही होनी चाहिए. बिल्कुल, यही ये दिस इज इम्पोर्टेंट. यहाँ आई मीन ट्रीटमेंट छुपा है, यहाँ प्रिवेंशन छुपी है. अच्छा. यू आर राइट. आई मीन सी, हमेशा ये देखना है कि चीजें एग्रीवेट हो सकती हैं मेनोपॉज से, विड्रॉल से, हार्मोन्स के, बट उनका जन्मदाता वो अकेला नहीं है. ये हमें देखना है. सो अगर आप प्रीडिस्पोज हैं किसी भी अन्य कारण से इन सब चीजों के लिए, तो ईस्ट्रोजन का विड्रॉल या प्रोजेस्टेरोन का विड्रॉल उसको एग्रीवेट करेगा. इसी बात को हम आज मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं. और ये बहुत पाया गया है साइंस में, लिटरेचर में, रिसर्च में, डाटा में, इसको बहुत देखा लोगों ने. एंड व्हेन दे एनालाइज्ड, दे फाउंड दैट all those people, all those women who suffered more symptom during menopause, they had some underlying risk factor which was leading to the symptoms. और वो बिल्कुल ठीक कहा आपने. तो वो फिर इन आदमियों में भी होगा. तो वो चाहे मैन है या वुमन है, उसके अंदर वो रिस्क फैक्टर्स हैं. तो ट्रिगर कोई भी हो सकता है. वो मेनोपॉज एक ट्रिगर है. मेन में वो स्ट्रेस हो सकती है, अल्कोहल हो सकता है, स्मोकिंग हो सकती है, सो मेनी थिंग्स. और ये देखा गया बहुत डाटा के बाद कि वो लोग जो ओबीज थे, मैंने जिनका बीएमआई मैंने बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा था, वो हम डिस्कस करेंगे कितना, स्मोकिंग काफी लेते थे, अल्कोहल काफी मात्रा में कंज्यूम करते थे, या स्ट्रेस मैनेजमेंट में प्रॉब्लम थी. स्ट्रेस को भी बार बार डिफाइन किया गया कि स्ट्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शन ज्यादा मैटर करती है. आजकल हम बहुत सुनते हैं, हम जब भी किसी को बोलते हैं कि स्ट्रेस मत लो, तो द ओनली आंसर इज कि स्ट्रेस कैसे हटेगी डॉक्टर साहब. तो एक्चुअली दे आर राइट. आई मीन स्ट्रेस को नहीं हटा सकते, बट रिएक्शंस को चेंज कर सकते हैं अपनी टू द स्ट्रेस. तो बार बार वर्ड ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट यूज होता है, नॉट की अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेस, विच इज नॉट पॉसिबल दीज डेज. एंड लास्ट, डाइटरी चेंजेस, वो भी हम इलेबोरेट करेंगे कि ये कौन से डाइटरी चेंजेस थे जिससे इन सिम्टम्स में काफी फायदा हुआ चेंज करने से. तो हम ओबेसिटी के बारे में आप कैसे, जैसे ओबेसिटी हम लोग सिंपल वर्ड में बोले हैं तो जैसे हमारा बैंक बैलेंस है, डालेंगे ज्यादा और निकालेंगे कम, तो खर्चा अगर कम करेंगे बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा. तो कहीं ना कहीं ओबेसिटी इसी ढंग से हमारी बढ़ती है. लेकिन मिडिल एज में एक नया प्रॉब्लम आती है जिसको मिड लाइफ स्प्लिट कहते हैं. एक विसरल ओबेसिटी बढ़ती जाती है, और जो आपकी एक वुमेन वाली शेप है जिसमें आपके कमर के नीचे का हिस्सा मोटा होता है, उसकी बजाय आपकी मैन के टाइप की ओबेसिटी होने लगती है, यानी एप्पल शेप, यानी पेट निकलने लगता है. वो सबसे एक डेंजरस आइटम होता है. बिल्कुल ठीक बात मैम. एंड इट्स सच अ इम्पोर्टेंट थिंग. एंड बिलीव मी, वो जो सब लोग कहते हैं ना मैम कि मुझे तो हवा भी लगता है, पानी भी लगता है, मैं तो पतली नहीं होती, मैंने सब किया, मैं खाती नहीं हूँ. आई मीन ऑल दोज पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस जो आपने बोला. जो मैम ने बोला, इसके इंग्लिश में दो मीनिंग है. एक होता है गायनाइड ओबेसिटी, एक होता है एंड्रॉइड ओबेसिटी. जो मैम जो बोल रही है ना, एक जो लेडीज वाली टिपिकल ओबेसिटी, और एक है मेन वाली जिसको हम एंड्रॉइड ओबेसिटी बोलते हैं, जिसमें हम हमारा पेट बाहर निकलता है, सेंट्रल ओबेसिटी या विसरल ओबेसिटी बोलते हैं. अनफॉर्चुनेटली सेंट्रल ओबेसिटी और पेट जिसमें बाहर निकलता है, उस ओबेसिटी का मेटाबॉलिक और लाइफस्टाइल डिजीज से बहुत रिलेशनशिप है. डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमियाज, फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी की सारी बीमारियां, कार्डिक, स्ट्रोक, सेंट्रल ओबेसिटी से ज्यादा रिलेटेड है. नंबर वन. सेकंड, जैसा मैम ने बोला कि ये जब कवर आती है तो इसके क्या नुकसान है. अब ये जो फर्स्ट चीज मैम ने बोली कि तिजोरी, एक्चुअली हम तिजोरी जैसे हैं. इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें प्रॉब्लम सारी यही आती है कि हम
दो प्रॉब्लम्स में फंसे हैं। एक तो हम समझ ही नहीं रहे कि हम ओबीज हैं। मेरे को पहला जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, लोगों को ये नहीं पता कि वो ओबीज है। उनको लगता है हम तो ठीक है, खाते पीते घर के बढ़िया चल रहे हैं। द प्रॉब्लम इज नंबर वन टू अंडरस्टैंड कि एक हम ओबीज है। सेकंड, अभी भी इनपुट आउटपुट रेशियो मैंने खाना और फिजिकल एक्टिविटी का बैलेंस ही एक चीज है जो मैनेज कर सकता है। पहले क्वेश्चन का आंसर कि क्या हम ओबीज हैं कि नहीं, पहले तो परसीव करना है। सबसे आसान फॉर्मूला है, आप हाइट सेंटीमीटर में निकालिए, उसमें से 100 घटा दीजिए मेन के लिए और 105 घटा दीजिए वुमेन के लिए। वो एक आपका आइडियल वेट है। तो मान लीजिए हमारे पास एक लेडी है जिसका हाइट 165 सेंटीमीटर है, मैं एवरेज की बात करूं, तो उसका जो आइडियल वेट है वो लगभग 65 होना चाहिए। वैसे तो 60 होना चाहिए, बट 65 इज अ गुड वेट। तो इससे तो पहले ये पता करिए कि आप ओबीज हैं, आप नॉर्मल वेट में नहीं है। और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे लोग हम में से ओबीज मिलेंगे अगर हम ये क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो। दूसरा, मैम इससे मैं पीछे वाली स्लाइड में जाना चाहूंगा, जो इसकी पिछली स्लाइड है, या दिस वन। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि ये जो कहना कि मैं खाता नहीं हूँ, खाती नहीं हूँ, मेरे लगता बहुत है, इसमें ना ये प्रिंसिपल क्या है कि हम इनपुट आउटपुट के रेशियो को नहीं समझ पा रहे। तो मैं एक एग्जांपल आप इसमें से दूं। मान लीजिए आप कोई भी एक एग्जांपल लीजिए, ये वाला खाना है, सब ले लीजिए कि आधा जब आप सब खाते हैं, हाफ फूड जब हम खाते हैं, उसमें लगभग 400 साढ़े 400 कैलोरी होती हैं। तो मैं अगर कहूं कि ये आपने खाया और इसको बर्न करने के लिए एक्सरसाइज कितनी करनी है, तो आप हैरान हो जाएंगे। इस सारे को बर्न करने के लिए कम से कम आपको 133 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी या फिर 62 मिनट की जॉगिंग करनी पड़ेगी। और आप अपनी जिंदगी में देखिए, सब लोग लाइफ में कौन है जो रोज 2.25 घंटे की वॉक करता है और 62 मिनट जॉगिंग करता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर इवन अ यंग बॉय। सो रेशियो का इशू इज है, थोड़ा परसीव ये करना है कि हमें लगता है हम नहीं खा रहे, बट ऐसा है नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल मैम ने और यहाँ पे रखा है। एक कैन ऑफ कोक है, आई मीन इट्स लाइक नथिंग, उसके अंदर 140 कैलोरीज हैं। इवन उस कैलोरी को भी बर्न करने के लिए 55 मिनट की वॉक चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो हमारा इनपुट और आउटपुट का रेशियो है, हमें लगता है कि हम इतना सा खा के वॉक कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो सफिशिएंट नहीं है। डाइट और आउटपुट की रेशियो को समझना पड़ेगा। एक्चुअली आप देखिए हमारे खाने का स्टाइल ये बर्गर वाला है, कोल्ड ड्रिंक वाला है, हार्ड है, शुगरी है, फैटी है। हम काउच पोटैटो बनते जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड। एंड फाइनली आई थिंक मैम सब लोग क्विक फिक्स चाहते हैं, आई मीन कुछ गोली दे दो डॉक्टर साहब एंड देन वी लूज वेट। एंड प्रोबेबली दैट्स नॉट सेफ एज ऑफ नाउ, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो। बेटर वुड बी टू अंडरस्टैंड कि या रेशियो खराब कर रही है और हमें उतने हिसाब से खाना है जितनी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, या वाइस वर्सा। तो जब हम ये आपने न्यूट्रिशन की बात बताई, तो थोड़ा इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। तो अब उससे वापस आते हैं कि अब ये तो समझ ही लिया कि जो हम खा रहे हैं उसमें कैलोरी बहुत है और उसको बर्न करना आसान नहीं है एक आम आदमी के लिए। लेट मी बी वेरी प्रैक्टिकल। कुछ लोगों को इस वक्त घुटने की दिक्कत आती है, कुछ लोगों को जॉइंट पेन्स हो रहे होते हैं। देयर आर वेरियस मेडिकल इश्यूज आल्सो व्हिच एक्चुअली प्रोहिबिट फिजिकल एक्टिविटी। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मान के चलते हैं कि यानी 2.25 घंटे की वॉक और 1.5 घंटे की जॉगिंग तो संभव नहीं है। तो जब संभव नहीं है तो इनपुट कम करिए। वो जो 400 किलो कैलोरी हमने डिस्कस करी, क्यों ना उसको कम कर दिया जाए। उसके तरीके क्या है? उसके तरीके हैं एक कंसेप्ट को समझना जो मैम ने अभी दिखाया, ईट वेल प्लेट। तो जब ईट वेल प्लेट की बात करते हैं तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट एक इंट्रोड्यूस किया गया था जो बताता है कि आपको एक समय में, चाहे वो निर्धारित समय है 7 दिन का, 1 महीने का, एक पॉइंट पे आपके खाने में होना क्या चाहिए जो आपकी कैलोरी को कम कर दे। तो बताया ये गया कि खाने का तिहाई हिस्सा, मिनिमम तिहाई हिस्सा आपका फाइबर होना चाहिए, जिसमें सलाद और आपके रेशे वाले फल होने चाहिए। एक तिहाई हिस्सा आपका प्रोटीन से होना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल, टोफू, पनीर, लेंटिल्स, स्प्राउट्स, ये सब। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर देन फिश, व्हाइट ऑफ द एग, या फिर व्हाइट चिकन आपका हो सकता है। अब आप जो हमारे कंसेप्ट को समझिए, जो नॉर्थ इंडिया में फॉलो करते हैं कि हम 3 रोटी खाते हैं और आधी कटोरी दाल खाते हैं, वो इसमें नहीं आता। इन विच वट वी आर डूइंग, हम प्रोटीन बहुत कम मात्रा में खा रहे हैं और बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खाए जा रहे हैं। तो ईट वेल प्लेट बोलती है ऐसा नहीं करना। 1/3 आप फाइबर खाइए, 1/3 आप प्रोटीन खाइए, 20% के आसपास डेयरी लीजिए और कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा को कम करिए। इससे आपको फीलिंग भी अच्छा होगा और आपका कैलोरी इनटेक टोटल अमाउंट वैल्यू कम रहेगा, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी में वो बैलेंस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ईट वेल। और ये वाले जो खाने हैं, आई मीन जो हमें पसंद है, हमारी एक्चुअली जीभ को पसंद है, वो पार्ट ही नहीं है ईट वेल प्लेट में, वो आते ही नहीं है। तो दे शुड बी इंजॉयड ओकेजनली, कभी कभी। दे शुड बी मोर लाइक सेलिब्रेशन।
तो बेसिकली आपका ये कहना है जो ये आजकल जंक फूड बढ़ता जा रहा है या हम वेस्टर्नाइज अर्बनाइज डाइट पे बढ़ाते जा रहे हैं, तो शुरू से ही हमें, क्योंकि जब हमने ये एक बात प्रूव कर लिया कि मेनोपॉज तो आना ही आना है, तो क्या हमें बचपन से ही इन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि हमें अपने खाने को ध्यान रखना है और जंक फूड को पराठे और पनीर से हटाना है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया, ये बहुत अच्छा है। आई मीन यू आर वेरी राइट। अभी बहुत सारा डाटा है विच हैज शोन दैट चाइल्डहुड ओबेसिटी, देन एडोलेसेंस, then PCOS, then abuse, sorry, obese adult, and then obese menopausal woman. ये एक सीक्वेंस है। जेनेटिक्स तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट देन वी कैन कंट्रोल द अदर फैक्टर्स। 22 जीन्स हैं जो आपकी ओबेसिटी को कंट्रोल कर रही हैं। तो बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म है, कोई प्रोडिक्ट नहीं कर पाएगा कि कौन ओबीज होगा, किसको वेट लूज करने में आसानी होगी, किसको नहीं होगी। तो रादर देन हम उस पर क्रिप करें, चिल्लाएं, रोएं, हमें अपने आदतों पे काम करना पड़ेगा, ये तो पक्का है। अब इसमें हिस्टोरिकली आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम छोटे बच्चे हैं या हम छोटी लड़की हैं, टीनेज गर्ल में हैं, तो उसमें बड़ा हिस्टोरिकली मॉम्स क्या करती हैं, हम लोग बर्गर्स पे, पिज्जाज पे तो बहुत ध्यान देते हैं, हमें लगता है ये सारा अमेरिकन फूड तो बहुत जंक है। बट मैं आपने बहुत अच्छा दिखाया ये स्लाइड, और ये बोलती है कि ऐसा नहीं है, इंडियन फूड में भी बहुत जंक है। उसके लिए जंक की डेफिनेशन को पता होना चाहिए। एक्चुअली जंक की फूड की डेफिनेशन एक ही है, कोई भी ऐसा खाना जिसमें वसा की मात्रा, कैलोरी की मात्रा, माने फैट की मात्रा, कैलोरी की मात्रा बहुत है और प्रोटीन की मात्रा कम है और सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है, माने नमक की मात्रा ज्यादा है, वो जंक है। अब उसमें इंडियन और अमेरिकन को डिफरेंशिएट मत करिए। चाहे वो ये स्टफ्ड पराठा है विद बटर, चाहे वो पनीर बटर मसाला है, चिकन बटर मसाला है, बहुत सारे पकोड़े हैं, ये सभी जंक हैं और ये हमें अवॉइड करना है। रीजन हमने पहले भी देखा कि जितना आप हाई कैलोरी फूड लेके जाएंगे उसको बर्न करना मुश्किल होगा, अल्टीमेटली इट विल लीड टू ओबेसिटी। So I think you're very right. It should be taken care from the very outset when we are in early age of adolescence and then early adulthood. तो ये जो हम खाना आप दिखा दिखा रहे हैं हम यहाँ पर, तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगी, फिर हम खाएं क्या? आपने तो हमारा पराठा भी ले लिया, पनीर भी ले लिया, तो फिर क्या हमारा इसका मतलब है हमारी उम्र हो गई है तो फिर हमें क्या करना है, ऐसे उबले चावल खाने हैं? एक्चुअली ये ना लिटिल नोटी लिटिल नाइस वाली है। I mean, ऐसा नहीं कि हमें हमेशा ही नाइस रहना है, वी कैन बी लिटिल नोटी ऑल्सो। ये कभी कभी शरारत करनी है, बट सैद्धांतिक तौर पे ठीक रहना, प्रिंसिपल इन प्रिंसिपल वी हैव टू बी adhering टू अ डाइट विच वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन ईट वेल प्लेट। एंड कभी कभी चीट डे मनाना है, चोरी करनी है, ये सब चीजें खानी है। एवरी डे यू कांट हैव इट। देन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैम, आई मीन दीज डेज इट्स वेरी वेरी कॉमनली सेड दैट यू शुड अर्न योर फूड। अपना खाना कमाइए, पैसे से नहीं कमाना है। आपने बर्न किया कि नहीं किया वो देखिए। आज मेरा मन है कि हाँ मैं ये खाऊंगा, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। इट्स वेरी वेरी सिंपल वर्ड, वेरी नाइस वर्ड कॉल्ड जस्टिफिकेशन। क्या आप अपने शाम के खाने को जस्टिफाई कर रहे हैं? नोबडी सेज कि मत खाइए, बट आप उस दिन या उसके रिलेटिवली आप उसको फिजिकल एक्टिविटी करके उसको बर्न आउट कर दीजिए, एंड यू आर एक्चुअली यू अलाउड दिस, बट नॉट एवरी डे, दैट्स फॉर श्योर। तो हमने जो आज 4 मेन प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, इंडाइजेशन, एसिड रिफ्लेक्स, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन, तो हम उस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि एक लेडी आपके पास आती है और उसकी सबसे मेन प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग दोनों है, तो आप किस किस्म का उसका डाइट मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे, या उसके कॉन्स्टिपेशन में उसको क्या एडवाइस करना पर चाहेंगे? क्योंकि बिफोर मेनोपॉज उसके शी इज नॉट ए कॉन्स्टिपेटेड वुमेन सिंस एजेस, तो वो एक पैथोलॉजिकल या अदर रीजंस ना होके वॉट एवर इज डेवलप्ड आफ्टर मेनोपॉज। या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन अल्टीमेटली वी ऑल नो दैट आउटकम चाहिए, तो रिजल्ट बड़े मैटर करते हैं। तो हाउ डू वी अचीव रिजल्ट्स? दो तरह के कंसेप्ट है इसमें। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स या लेडीज हु आर इन मेनोपॉजल एज जिनको ये सब आएगा, तो यूजुअली ब्लोटिंग इज वेरी वेरी कॉमन एसोसिएट सिम्टम। तो ऐसे में व्हाट आई विल डू, पहला काम रहेगा सेम, उसको असेस करना कि क्या वो एक्चुअली ओबेसिटी रेंज में है, उसका बीएमआई कैसा है, मेटाबॉलिक पैरामीटर कैसे है। और ऑफ कोर्स मैं सारी एडवाइस जो दे चुका हूँ उसको दूंगा। Second, the only very 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 important thing which leads to bloating is lactose and caffeine. मैं उसको मिल्क कम करने को बोलूंगा, because this has been found in India that during we grow in age from 5 years to 45 years,
लगभग 40% हिंदुस्तानी या एशियंस लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं, दो दे आर पार्शली इंटॉलरेंट। तो उन लोगों का दूध कम करके बेटर टू शिफ्ट देम टू कर्ड, योगर्ट एंड बटर मिल्क। दही, लस्सी, छाछ पे आप भेज सकते हैं एज कम्पेयर टू मिल्क। एंड कैफीन का इंटेक कम करना है। दो, फिजिकल एक्टिविटी में बढ़ाने के लिए बोलूंगा, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी, वी डिस्कस द रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑलरेडी। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक शब्द आपका समझने के लिए। ये कैफीन कैसे प्रॉब्लम करता है? यस मैम, कैफीन के ना तीन चार मोटे नुकसान हैं गट के ऊपर, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टमक। एक तो ये एसिड सिक्रीशन को बढ़ाता है। इनिशियली जब हम लेते हैं तो हमें किक मिलती है, हमें लगता है यार बहुत अच्छा स्टिमुलेशन हुआ, अराउजल हो गया, हम लोग काम कर पाएंगे, तो ये बड़ा कैफीन का एक है। बट इट हैज बीन फाउंड, जब क्यूमुलेटिव डोज आप कैफीन की लेते हैं, आप ज्यादा मात्रा में चाय का प्रयोग करेंगे या कैफीनेटेड ड्रिंक्स यूज करेंगे, तो वो एसिड के सिक्रीशन को बढ़ाएगा, जो हमने डिस्कस किया एज अ पैथोजेनेसिस इन रिफ्लक्स। ये गट की मोटिलिटी को अफेक्ट करा है करता है, जिसको हमने डिस्कस किया बैक्टीरियल ग्रोथ में या ब्लोटिंग में या गैस में। और ये कोलोनिक मोटिलिटी माने लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट को भी चेंज करता है, जो हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिपेशन में। तो ये ओवरऑल हेल्थ को, गट की इफेक्ट करता है। और कैफीन की मात्रा को हम रिक्वेस्ट करके कम कराते हैं इन पेशेंट्स में। ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये बेसिकली आपका ये कहना है कि इस समय में खाने में बहुत परिवर्तन लाना पड़ेगा। खाना सादा होना चाहिए जिससे एसिड ना बढ़े, एक बार में मात्रा कम हो जिससे कि वो वहां टिके नहीं, चाहे हम कई बार खाएं। तो एक डिक्टम है स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट। यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या ऐसा भी कुछ है कि हमें सीरियल्स के तरीके में कुछ चेंज करना चाहिए, फ्रूट्स के तरीके में कुछ चेंज करना चाहिए? कुछ बिल्कुल मैम, फ्रूट्स ऐसे हैं जो कॉन्स्टिपेशन बढ़ा सकते हैं। अच्छा आपने पॉइंट उठाया। रिसेंटली मैम, देयर इज अ डाइट कॉल्ड एज फोर्ड मैप डाइट। अगर लोग FODMAP गूगल में डालेंगे या सर्च इंजन में डालेंगे, हम्म, इट्स कॉल्ड फोर्ड मैप। ये हम्म, कंसेप्ट बड़ा आपने जो उठाया, इसके ऊपर रिसर्च हुई। आई मीन द मोस्ट ऑफ द रिसर्च वाज डन इन ऑस्ट्रेलिया, मोनाश करके एक जगह है वहां पे। तो फोर्ड मैप का क्या मतलब है? फोर्ड मैप का मतलब है फर्मेंटेबल ओलिगो डाई मोनोसेकेराइड एंड पोलियोल। अगर हम सिंपल भाषा में इसको बोलें, तो कोई भी ऐसा खाना आपकी डाइट में जो फर्मेंट हो सकता है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर वो खाना जाएगा जिसके अंदर फर्मेंटेशन की पावर है, होने की पावर है, और बैक्टीरिया ज्यादा हुए तो उसको फर्मेंट करके गैस बनाएंगे। जैसे कि जैसे कि मैं अगर सिंपल शब्दों में बोलूं, आपका फ्रक्टोस, मैंने जो जूस का जो शुगर है उसको फ्रक्टोस बोलते हैं। लैक्टोस जो आपके दूध की शुगर है। सूप एंड जो ग्लूटेन, थोड़ा सा डाटा भी ग्लूटेन के ऊपर है। ग्लूटेन का अगर आप आम भाषा में बात करें, जो हम व्हीट मैंने गेहूं का प्रयोग करते हैं, तो उसके प्रोटीन को ग्लूटेन बोला गया। कुछ एक फ्रूट्स हैं, इसमें से कुछ फ्रूट्स में अभी बड़े फैंसी फ्रूट्स हैं, जैसे एवोकेडो है, ये सब चीजें। तो इस तरह से कुछ डाइट्स हैं जिनको डिफाइन करा गया, और ये देखा गया कि अगर उनकी मात्रा को कम किया जाए तो गैस फॉर्मेशन बहुत कम हो जाती हैं। तो लोग जा सकते हैं गूगल पे, फूड मैप पे सर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि टोटली बंद करना है फूड मैप को, बट देन उसका अगर अमाउंट को, मैंने मात्रा को भी कम करेंगे, तो बहुत फर्क पड़ता है गैस के सिम्टम पे डोमिनेंटली। तो डॉक्टर साहब ये जो आपने बोला एवोकाडो, वो तो आजकल कहते हैं बहुत ही बढ़िया वाला फैट उसमें होता है। अगर कोई वेगान है तो उसको एक ही चीज है उसके पास जिसपे उसे बढ़िया किस्म का फैट खाने को मिल सकता है। वेरी कॉस्टली फ्रूट मैम, बट देन पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम गैस, वो लोग इसकी परहेज कर सकते हैं। जिनको ये दिक्कत नहीं है, आई थिंक दैट्स वेरी गुड फ्रूट। मतलब इससे गैस बनती है, गैस जिनको बन रही है, जिनको बर्पिंग की इन सब की ज्यादा परेशानी है, तो वो एवोकाडो ना खाएं। जी मैम। अब एक चीज तो हमने फूड तो डिस्कस कर ली, अब हम कुछ ऐसा डिस्कस करना चाह रहे हैं जो पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कि लोग उसको छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। आपका अल्कोहल के बारे में आपका क्या कहना है? मैम, आई थिंक ये बड़ा डिस्कशन जरूरी है। हम आई थिंक द सिटी वी आर स्टेइंग, गुड़गांव या मेट्रोज में, तो ये अब इट्स लाइक कॉमन। लेट्स एक्सेप्ट इट। आई मीन रादर देन रनिंग अवे फ्रॉम दिस डिस्कशन, हमें इसको मानना चाहिए और इसकी डिस्कशन करके क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देना चाहिए, रादर देन इस टॉपिक को हटा दें। दिस इज व्हाट आई थिंक प्रोबेबली। और we see every day that consumption is getting increased in women and all these groups. तो आई थिंक अल्कोहल एक दो उसके पार्ट हैं उसके। एक तो अल्कोहल को थोड़ा सा हाइप किया गया है सोशली, वो सही है, मैं मानता हूँ। बट देन जो पीते हैं उन्होंने इसको मिसयूज भी बहुत किया है, वेरियस एक्सक्यूजेस दे दे के। I mean, कोई ये कहेगा कि नहीं, मैं तो अल्कोहल कैसे मने, आप मेरे को मना करते हो, मेरे फादर तो 90 तक पीते रहे, उनको कुछ नहीं हुआ, तुम कैसे मेरे को बोलते हो यार कुछ होता नहीं है इससे।
आई मीन देयर आर पीपल हु विल से कि मैं तो बियर ही पीता हूँ, मैं तो पीता ही नहीं अल्कोहल, उनको बियर अल्कोहल लगता ही नहीं। देन क्योंकि हम वुमेन ऑफ मेनोपॉजल एज ग्रुप से डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल इन वुमेन वर्सेस मेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कशन करना जरूरी है। तो इसी पे मैं अगर आऊं, तो एक तो अल्कोहल का भी इफेक्ट ओबेसिटी जैसा ही है। किसी को नहीं पता कि पीने से किस पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि जेनेटिक बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करती है इसके मेटाबॉलिज्म को। प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे आप, नंबर वन। सो ये कहना कि मेरे दादाजी पीते रहे, उनको कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ कैसे होगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पीपल डाई एट एज ऑफ 30 ऑल्सो बिकॉज ऑफ अल्कोहलिज्म। मेन वर्सेस वुमेन में बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है मैम। इसमें बेसिकली क्या था, उन स्टडी किया गया जिसमें एक लड़का या लड़की, मैं एक एग्जांपल अगर दूं, उनको अगर सेम अमाउंट में अल्कोहल दिया गया, उनको उन्होंने कंज्यूम किया, तो उन लोगों को बिठा के जब 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में उनके ब्लड में अल्कोहल की मात्रा को नापा गया, तो ये पाया गया कि वुमेन के अंदर अल्कोहल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम, चाहे वो आधा घंटा था, 1 घंटा था, वो मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई। तो मेटाबॉलिज्म वुमेन का मेन से डिफरेंट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने दिखाया कि भैया कंधे से कंधा मिला के चलिए मेन से, बट प्लीज इसमें compete मत करिए, ये नुकसानदेह है। क्योंकि इसमें आपको सेम अमाउंट में नहीं पीना, आपके अंदर सेम अमाउंट में डैमेज होने का रिस्क ज्यादा है एज अ वुमेन। सो कितना पीना चाहिए? ये मैडम ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन है, इसका कोई आंसर नहीं है। उसका रीजन मैंने बताया। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब इतना बताओ, पी लूं और मुझे कुछ हो ही ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है, येट टू बी आंसर्ड है। मैं कुछ कोशिश करूंगा। रीजन मैंने बताया, क्योंकि जेनेटिक्स सबकी डिफरेंट है, हमारे पेरेंट्स डिफरेंट हैं, हमारा सब कुछ डिफरेंट है। सो मेरे लिए कमेंट करना कितना सेफ है मुश्किल है। बट मैम, हमने जो पाया है अपनी प्रैक्टिस में, कि अगर आप बिंजिंग ना करें, मैंने आप बहुत ज्यादा अल्कोहल एक साथ ना पिए, और हल हफ्ते में एक बार से ज्यादा ना पिए, मैंने वंस अ वीक और लेस विद नो बिंजिंग, usually we don't find people suffering from the side effect of alcohol, whether it's on liver, pancreas or intestine. Though it is very arbitrary what I'm telling, but then probably this is roughly can be tried. तो आपने हमारी कैफीन भी ले ली, अल्कोहल कम कर दिया, अल्कोहल भी ले लिया, कर दिया अब क्या बहुत। रह गया? हम बाहर निकलते हैं आजकल तो जितने कॉल सेंटर, उनके आगे जितनी लड़कियां सिगरेट पीती दिखती हैं, लड़के कंपेरेटिवली कम दिखते हैं। तो आगे चल के यही लड़कियां मेनोपॉजल वुमेन भी बनेंगी, हैबिट बढ़ी हुई है। तो टोबैको के ऊपर आपका क्या कमेंट है लड़कियों के लिए, मेनोपॉजल मैम, आपने वुमेन? स्लाइड तो रखी है, बट मुझे लगता है ये टॉपिक 2 घंटे अकेला खाया जा सकता है इस नहीं टॉपिक नहीं के नहीं, ऊपर। थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब हमारा टाइम खत्म हुआ है। तो मुझे लगता है मैम, ये इसके इतने साइड इफेक्ट हैं कि आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट देम टू क्रॉस इट। आई मीन, इसमें तो लीनियंसी भी नहीं है कि भैया अल्कोहल कभी ले लो, थोड़ा ले लो, ज्यादा ले लो। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द रिस्पेक्टेड वुमेन इन दिस एज ग्रुप टू प्लीज स्टॉप टोबैको। इट हार्म्स ऑलमोस्ट एवरी organ of the body. There is no cancer in the body which is not contributed by tobacco. There is no hormonal change that's not contributed by tobacco. So in gross, I think please abstain from smoke totally. There is no discussion at all. यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जो टोबैको है आपका ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर दोनों बढ़ाता है, जो कि मेन में नहीं होता है। इवन लंग कैंसर के भी 16 टाइम्स मोर चांसेस हैं वुमेन में होने के देन मैन, एंड इट इज मोर एग्रेसिव इन वुमेन देन द मैन। और एक चीज और है, जब आप सिगरेट पी रहे होते हैं, नहीं सोच रहे होते हैं, वो कि आपके चेहरे पे जो रिंकल्स आने हैं ना, टोबैको से जल्दी आ जाएंगे। तो कैंसर से डरिए ना डरिए, रिंकल से तो डरेंगे, तो शायद Aesthetics. टोबैको ना पिएंगे। तो बेसिकली लास्ट पोर्शन रह गया, जो आपने शुरू में बोला कि हम सबसे ज्यादा जब भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से लोग आते हैं, तो हमें दो चीजें देखनी होती हैं। दवाइयाँ तो ठीक है कि दवाइयाँ लिख दो, दैट इज अ क्विक फिक्स, और शायद यहीं पर लोग हम मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिशनर को प्रेशराइज करते हैं। अगर हम और कुछ पढ़ाते हैं तो उनको लगता है हम तो प्रीचिंग कर रहे हैं। हमारे से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए उनको हमारी बातें ना सुन करके जो सो कॉल्ड प्रोक्लेम्ड गुरु हैं, उनको उनकी बातें सुनना ज्यादा पसंद है। लेकिन यहाँ पर ये चीज बहुत क्लियर करनी आप लोगों को जरूरी है कि ये हम डिवीजन नहीं कर सकते हैं कि हम आपको क्या बताएंगे, कोई और क्या बताएगा, लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी के बारे में आपका क्या बताना है? मैम, इसके बहुत रिवार्ड्स हैं।
physical activity is the only thing, if you ask me, and of course you are such a senior doctor, this is the only thing that can save you from doctors. ये सबसे जरूरी चीज है. ऑफ लेट फिजिकल एक्टिविटी के फिजिकल रिवार्ड्स तो सबको पता है होते हैं, बट ऑफ लेट फिजिकल एक्टिविटी के मेंटल रिवार्ड्स भी हैं. स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करती है, कोप अप पावर बढ़ती है आपकी, एंडोर्फिन्स निकलते हैं, स्ट्रेस बस्टिंग हार्मोन्स निकलते हैं. You are more able to concentrate, and hundreds of advantages physical activity has, of course, other than controlling weight, digestion, increasing your lung capacity, heart capacity, which actually goes down during menopausal. So करनी चाहिए मैम, बहुत अच्छे से करनी चाहिए. The only message नटशेल में मैं पास करना चाहूंगा, ये कस्टमाइज होनी चाहिए. प्लीज डोंट बिलीव कि गूगल में लिखा है 5 दिन हफ्ते के 40 मिनट वॉक करिए काम हो गया. ऐसा नहीं है मैम. We now believe that physical activity is different for different people. Reason being कि आप अपना वेट आपका अलग है, किसी और का अलग है. आपका टेंडेंसी टू लूज वेट अलग है, किसी और का अलग है. आप खाते कुछ और हैं, वो कुछ और खाता है. You cannot compare. So I would request that do a customized physical activity. How do we define that? Probably take out your extra weight. आपने देखा कि आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, आपका वेट 75 है. 15 किलो आप एक्स्ट्रा हैं अपने वेट में, आपको वो कम करना है, देन उसके बाद मेंटेन करना है. एक्चुअली अगर आप इसको लगभग साल 1.5 साल का टारगेट अगर रखते हैं, और आप ही कोशिश करिए कि मैं 1-1.5 किलो महीने में कम करूंगी, तो उसको अचीव करने की जो फिजिकल एक्टिविटी है, दैट्स योर फिजिकल एक्टिविटी. दिस इज नंबर 1. सेकंड, ये बहुत ट्रबल शूटिंग वाला काम है. मैंने शुरू किया, मुझे एक्स होने लगे, पेन्स होने लगे, अदर देन द विल पावर ऑफ कोर्स मैंने जाना बंद कर दिया. तो इसको नहीं करना है. कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट दो. सो consistent physical activity, gradually increasing physical activity, reaching to a level which results जिससे आए, इसको बोलते हैं physical activity to the target. अपना टारगेट अचीव करना है, नॉट कि किसी ने थ्योरेटिकली बता दिया कि 30 मिनट चल लीजिए, 40 मिनट चल लीजिए, काम हो जाएगा. ऐसा होता नहीं. और हमने पहले भी डिस्कस किया इसका रीजंस क्या है. एक जो बहुत ही जरूरी सी चीज है मेनोपॉज में ध्यान रखने की, कि ये समय है जब आपको ऑस्टियोपोरोसिस या बोन का झरना जिसको कहते हैं, वो भी होने लगता है महिलाओं को. तो बिना सोचे समझे आपको एक्सरसाइज की तरफ नहीं बढ़ जाना है. अपने बॉडी का असेसमेंट कराना है, सुपरविजन में एक्सरसाइज करनी है. टेढ़े मेढ़े एक्सरसाइज नहीं करनी है कि ज्यादा ट्विस्टिंग कर ली तो कमर की हड्डी चली गई, या भारी वजन उतार दिया तो हड्डियां, हाथों की हड्डियां टूट गई. तो एट दिस एज, और खास करके अगर आपने कभी भी एक्सरसाइज नहीं की है, तो आपको एक दिन में हीरो नहीं बनना है. ग्रेजुअली ग्रेजुअली काम करना है. डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत वैलिड क्वेश्चन है मैम. इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं. थोड़ा टाइम कम है हमारे पास, बट मैं नटशेल में बताऊंगा. वो लोग जो डायबिटिक नहीं है, जिनका वेट ज्यादा है, there is enough data in very good journals in medicine which they have proven that intermittent fasting can be helpful. दो तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग है. एक 16-8 जिसमें आप 16 घंटे फास्ट करते हैं और 8 घंटे खाते हैं, और एक जो दिन के हिसाब से है, 3:2 5:2 की रेशियो में आप हफ्ते के अंदर डिवाइड करते हैं. द ओनली प्रॉब्लम इज, ध्यान ये रखना है कि वो लोग जो जिनके शुगर्स लेवल बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, HbA1c हाई है, जिनका मेनोपॉज के वक्त पे शुगर वैसे भी फ्लक्चुएट करता है, उनको इसको अवॉइड करना है. इसको हम मिक्स भी कर सकते हैं. बहुत थ्योरेटिकल चलने की जरूरत नहीं है कि मैं 16 घंटे बिल्कुल टच ना करूं खाना, 8 घंटे खा लूं. आप अपना इसका स्टैंडर्ड अपना वेरिएशन कर सकते हैं. लाइक जब आप सोचते हैं कि मैं डिनर स्किप करूंगी, तो उस वक्त पे बिल्कुल स्किप करने की बजाय आप लो कैलोरी फूड खाएं, जैसे हमने ईट वेल प्लेट में डिस्कस किया. तो इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है. अगर नहीं बात बनती है तो प्लीज एक डाइटिशियन से या डॉक्टर से मिलना है बिफोर यू प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन, बिकॉज इसके अपने साइड इफेक्ट हो सकते हैं. तो बहुत ध्यान से इसको अचीव करना है. क्वेश्चन, वाइन के बारे में क्या कहना है? उसमें तो लोग कहते हैं कोई अल्कोहल होता ही नहीं है. Actually, wine में मैम, because I'm trained in alcohol, being a alumni from PGI चंडीगढ़, so wine में 11 to 12% weight by volume है. बियर में 5 to 8 है, विस्की में 42% है. बट आप ध्यान दीजिए, आप विस्की लेती हैं 30 ml या 60 ml, यू डाइल्यूट इट टू एटलीस्ट 4-5 टाइम्स विद सोडा और वाटर. तो आप एक्चुअली उसको 5 बार जब डाइल्यूट करती हैं, तो विस्की भी 12% पे ही आ जाती है. 42 को अगर 5 से आप डिवाइड करें, तो ऐसा नहीं है. वाइन इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल, इट कंसंट्रेशन इज आल्सो गुड इनफ, सो इट इज अल्कोहल नंबर 1. बीच में बहुत लोगों ने डाटा पेश किया था 2015 तक कि वाइन या मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाइन अल्कोहल हार्ट के लिए ठीक है, बट दिस डाटा हैज बीन वेरी वेल रिफ्यूटेड नाउ. ऐसा नहीं है. 2, तीसरा, यू नो,
अल्कोहल से मतलब नहीं है लिवर को या इंटेस्टाइन को, उनको इसके केमिकल फॉर्मूला से मतलब है, दैट्स इथेनॉल, है ना, उससे वो जा रहा है बॉडी के अंदर। एवरीथिंग एल्स इज अ कैरियर। आप किस तरह से अल्कोहल को प्रोसेस करके लाए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। सो इट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट दैट वाइन अल्कोहल नहीं है और वो पी लेना चाहिए। सो दिस इज माय लास्ट स्लाइड। क्या रेस्ट और स्लीप का भी कोई असर आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए होता है? बहुत ज्यादा मैम, आई मीन इट हैज बीन अगेन, इसको लोगों ने हाईलाइट नहीं किया, बट इट हैज बीन फाउंड दैट पीपल हु हैड अ लैक ऑफ स्लीप, और जो लोग पूरा सो नहीं रहे थे, जिनकी ब्रोकन स्लीप थी, जो रेम स्लीप माने जो साउंड स्लीप अचीव नहीं कर पा रहे थे, उनके अंदर डिसीजेस, पैथोलॉजिकल इश्यूज, गट सिम्टम्स, गैसी इश्यूज बहुत पाए गए। ऑफ कोर्स अदर देन द मेंटल इश्यूज एंड ऑल, वो समय बताएंगे। तो ऑफ कोर्स एक एडिक्वेट रेस्ट चाहिए, एंड प्रेफरेबली वो एक फुल रेस्ट होना चाहिए। आपके अंदर 6 से 7 घंटे की एक स्ट्रेच नींद होनी चाहिए। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीजों ने लोगों ने डाला है कि मैं दिन में सो लेती हूँ या 4 बजे सोई 11 बजे उठ गई, वो नहीं चाहिए। इट शुड बी प्रेफरेबली अ नाइट स्लीप। सो स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंत में ये है, समय से उठिए, थोड़ा चलिए, सोच के खाइए, खुश रहिए, और अगर पीना है तो पानी पीजिए, बाकी चीजों के लिए कई बार सोचिए, तब उसको हाथ में लीजिए, एंड बहुत सारी पाउच हो फिजिकल जाके एक्टिविटी करिए जितना आपको बॉडी परमिट करती है। सो विद दिस, डॉक्टर पवन, जाते जाते कोई आखिरी मैसेज और आप देना चाहेंगे लोगों को, खास करके वाटर इनटेक के ऊपर हम पूछना भूल गए आपसे। यस मैम, बिफोर वाटर, जैसे आपने पहले उठाया ना यार कि क्या करें, सारी जिंदगी बच्चे पाले, काम किया, और अब तुम बोल रहे हो कि ना खाओ ना पियो ना कुछ करो। तो ये है मैम, बस इसमें लेकिन अगेन सबने यही बोला है कि दिस इज नॉट टू बी फुली अडियर टू। आप 70-80% भी अगर आप इसको अडियर करेंगे और 20% आप इसको चीट करेंगे तो थिंग्स विल बी डन। दिस इज वन। सेकंड, यू नो, डे वन चाहिए, स्टिमुलस चाहिए, किक चाहिए। डे वन आएगा तो डे 10 भी आएगा। नीड टू स्टार्ट, दैट्स इम्पोर्टेंट। तीसरा, एज को नहीं देखना है, एवरी एज इज गुड, रादर इट्स एज टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर योर यंगर colleagues in your house, जो आपके घर में हैं, आपकी बच्चियां हैं, आपके बच्चे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट टेक इट ऑन अ बर्डन योर हेड कि तुमने पढ़ा दिया, अब ये भी ना करें वो भी ना करें, अभी तो शुरू हुआ था, अभी तो कमाया था थोड़ा बहुत जो खाना है। सो दिस आई थिंक शुड बी टेकन पॉजिटिवली। जहां तक वाटर इनटेक का सवाल है, ऐसा तो डाटा नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द वाटर लॉस यू हैव। सी देयर 2-3 डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल। एक तो लेबर है जो बाहर धूप में काम करता है, एक एसी के अंदर बैठ के ऑफिस में काम करता है, एक हाउस मेकर है जो घर पे काम करती है। तो वाटर इनटेक हैज टू बी डिफरेंट बिकॉज वाटर लॉस बहुत डिफरेंट है। बट यस, अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, टू मेक इट इन लिटिल शॉर्टर, 6 से 8 ग्लास दिन में होना जरूरी है। वाटर चाहिए, वाटर एक तत्व है हमारे शरीर में जो जरूरी चाहिए। सारी बॉडी की रिएक्शन, हाइड्रेशन वाटर से ही हो रही है। एक एडिक्वेट अमाउंट में वाटर चाहिए, लगभग 2 लीटर एक रिक्वेस्टेड अमाउंट होती है, विच अमाउंट्स अराउंड 6 to 8 ग्लासेस पर डे। अभी किसी ने ये पूछा कि आप 15 साल के बाद मेनोपॉज के भी जीआरडी हो सकता है? 15 साल मिनोपॉज के बाद वो एक पर्सन तो है ही। वो पर्सन अभी भी प्रोन है ओबेसिटी को, स्ट्रेस को, लाइफस्टाइल चेंजेस को, लैक ऑफ स्लीप को, खाना टाइम पे नहीं खाएगा उसको। एंड ये भी देखना है कि हम उस 15 साल बाद 15 साल पुराने भी हो गए हैं। सो एक गाड़ी है जो पुरानी और होती जा रही है, उसको और मेंटेन करना होगा। तो दिस वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सो सिम्टम्स आर पॉसिबल, और मैंने मैम ने भी बताया पहले कि दिस नॉट अबाउट मेनोपॉज ओनली, एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट वुमेन, दिस ऑल अबाउट एवरीवन। सो जो चेंजेस सबको चाहिए, यस जीआरडी स्टिल पॉसिबल, और सारे फैक्टर जो हमने डिस्कस किए लाइफस्टाइल के, वो सभी उस वक्त भी अप्लाई करने होंगे हमें। एक ये आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई कि जब आपकी उम्र बढ़ रही है तो हमें ये सोचना है कि उस उम्र के साथ, बढ़ती हुई उम्र के साथ, यानी पुरानी होती हुई गाड़ी के जो घिसते हुए पुर्जे हैं, उनकी मेंटेनेंस पे और ज्यादा काम करना पड़ेगा। हो सकता है जब आपका मेनोपॉज हुआ उस समय आप एक्टिव हो, आपकी आप जॉब में हो, आप आते हो जाते हो, तैयार होते हो, आपका मेंटल स्टेटस दूसरा है। लेकिन 15 साल के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद, तो एक जो सबसे बड़ी चीज आ जाती है, जो कि आमतौर पे देखा जाता है, अगर आपने अपने आप को री इन्वेंट नहीं किया है, मेरा आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक चीज कहना है, यू हैव टू री इन्वेंट योर सेल्फ एट एवरी स्टेट। मीनोपॉज के बाद जिस औरत ने अपने आप को री इन्वेंट नहीं किया, अपनी हॉबीज को नहीं उभारा, और दिन भर इस बात के लिए रोते रहे कि अरे बच्चे चले गए अब हम क्या करें, नौकरी चली गई अब क्या करें,
अब हम तो बुढ़े हो गए तो क्या करें। तो देखिए, फिर तो आप बुढ़े रहिए और रोते रहिए, वरना खुशी के साथ अगर जिंदगी जीनी है तो री इन्वेंट करना होगा और कुछ अपने लिए भी जीना होगा, और ये सोचना होगा कि जिंदगी में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। वेरी ट्रू। तो इन शब्दों के साथ आप लोगों से आज के उसमें हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर रावल, आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। एंड ओवर टू यू दीपिका। Thank you very much, Dr. Ragini ma'am and Pawan Rawal sir. Wonderful session. And two, 3 questions have been put up and have been taken up, but still I'll request the attendees, if anybody has any questions, please put in the chat box. We encourage you to interact with the experts. And once again, I remind you about the New Year gift that we'll be sharing with you. Like it was told last month, this is a book that is going to be sent out to all the attendees of last webinar and this webinar. This is a book on perimenopause and beyond, finding your balance, a book by a leading doctor from Mumbai. You can share your address, phone number on my WhatsApp number written here, 9810269907. Many of you have already given us the addresses. In case if you have not shared your address, you can even put it in the chat box here and we'll get in touch with you to get your address, put your phone number here or connect with me on this WhatsApp number. एक और बहुत अच्छे से 2 क्वेश्चन है डॉक्टर रावल, आप इनका आंसर जरूर दीजिए। एक तो किसी ने ये पूछा है कि क्या हम सिरोसिस को रिवर्स कर सकते हैं? वेरी वंडरफुल। आई मीन मैम, डाटा इसमें दो तरह का है। सिरोसिस, आई थिंक मुझे लगता है काफी लोगों को पता नहीं होगा। सिरोसिस तब बोलते हैं जब क्यूमुलेटिव लीवर डैमेज होने से, वेदर वो ओबेसिटी से था, अल्कोहल से था या वायरस से था, धीरे धीरे बॉडी के अंदर फैटी लीवर हुआ, फैटी लीवर से इंजरी हुई, थोड़ा सा स्कारिंग हुआ और फिर अल्टीमेटली पूरा लीवर स्कार हो गया। उस पूरे ऑलमोस्ट स्कार लीवर को सिरोसिस बोलते हैं। तो अब उसमें ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज द रूट कॉज फॉर दैट। अगर वो अल्कोहल था, अगर वो ओबेसिटी थी, अगर वो वायरस थी, अगर आप उसको ट्रीट कर देते हैं, माने इफ यू ट्रीट द रूट कॉज, देयर इज एनफ डाटा टू से that more than 35 to 40% people would reverse their cirrhosis, and we have seen in our practice also. The problem happens जब हम विल पावर हम छोड़ देते हैं। हम ओबेसिटी है करेक्ट नहीं कर रहे, डायबिटीज है मैनेज नहीं कर रहे, अल्कोहल हम छोड़ते नहीं है, डाइट्स पे काम नहीं करते, या फिर कोई ऐसा अननोन फैक्टर है विच वाज नॉट एक्चुअली टोल्ड टू कॉज सिरोसिस, उसको रिवर्स करने में प्रॉब्लम आती है। तो या इफ यू करेक्ट द रूट कॉज, यू वर्क ऑन इट, it is potentially reversible. This is an actual statement I would give. एक्चुअली जब हम सिरोसिस वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इसको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा, ये हम कौन सी सिरोसिस की बात कर रहे हैं, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। बेसिकली तो नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस तो हमारा लाइफस्टाइल के कारण है, उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। अल्कोहलिक सिरोसिस में तो बहुत बड़ा रोल है कि आप अल्कोहल छोड़ पा रहे हैं या नहीं छोड़ पा रहे हैं। दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपका क्या कहना है कि मेनोपॉज में किस ढंग से और क्यों बढ़ता है? थोड़ा सा इफेक्ट हार्मोन्स का है मैम, बट देन घूम के सारी चीज वहीं आ जाती हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट टॉपिक है, बट देन कोलेस्ट्रॉल यूजली आपको डिफाइन करना होगा कि आप कितने प्रोन हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, आप कितने मेटाबॉलिक सिंड्रोम में फिट होते हैं और किस टाइप का कोलेस्ट्रॉल है। माने ये केवल एलडीएल है, इसमें एचडीएल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितने हैं। तो रादर आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये सारे चीजों पे काम करिए जो हमने डिस्कस किया, वेट मैनेजमेंट पे, डाइट मैनेजमेंट पे, वो आपका काम है। दैट्स टू गुड। बट देन अगर आपको लगता है ये कोलेस्ट्रॉल अपर लिमिट में है, तो आई थिंक राइट डाइटरी एंड अ मेडिकल एडवाइस इज नेसेसरी, बिकॉज ये एज आ जाती है जब आपको शायद प्रोफिलेक्टिक दवाइयों की जरूरत पड़े। ये डिपेंड करता है आपकी फैमिली हिस्ट्री पे, आपके रिस्क फैक्टर पे। देयर आर स्कोरिंग सिस्टम टू प्रोड्यूस दैट। Thank you so much. Now we will take our leave. Deepika, for you. Yeah, so now I'll just take 1 minute through our women's health website that we have, mysakhi.in. MySakhi is the CSR initiative of Jackson Pearl Pharma, one of the leading pharmaceutical companies in women's health. With this initiative, Jackson Pearl is involved in spreading public awareness about women's health and wellness from all life stages, from adolescence to menopause. Besides this, the company has already made a positive impact
by building sanitation facilities. And slides are not moving fine today. Problem with my mouse. Computer. Okay. So besides this, the company has made a positive impact by building sanitation facilities in Punjab, Haryana, and Uttarakhand in government girls' schools while promoting women's health and hygiene. With the aim towards promoting public awareness about women's health, this website, mysakhi.in, it provides you educational content with public awareness programs led by medical experts like the one today. Recordings of this public awareness programs are available on the website, and we look forward to your active participation along with your family and friends. Do join in great numbers in our pursuit to spread awareness and promote better health management for women. Next, our webinar is on Friday, 31st of January. Dr. Ragini will be in dialogue with a clinical psychologist, mental health and behavioral sciences specialist, Dr. Munya Bhattacharya, also at Gurugram. So we look forward to seeing you again. The book that we have just spoken about will be sent out end of this month. So by that time, you can send us the address or phone number in the number that was displayed for WhatsApp so that we can connect with you and get in touch with you so that we have your address to send this book. So thank you all very much. Thank you, the experts today. And it was really a wonderful session, Dr. Ragini and Dr. Pawan sir. Thank you, Thank you Dr. so Deepika. much. Bye-bye.